So good morning all of you. Today we will study about PEM, means protein energy malnutrition. It is an important topic. आप further classes में भी पढ़ेंगे. It will be asked in the PSM, medicine as well as in the pediatrics department. And obesity and diet in various diseases like diabetes and in heart patients. So what is about the protein energy malnutrition? It is basically a nutritional problem which occur in the children, and it is of two types, marasmus, kwashiorkor, and a mix of marasmus and kwashiorkor. So the term marasmus is derived from when there is a severe energy as well as protein deficiency in a child. So marasmus, and kwashiorkor, it is basically the deficiency of the protein. So kwashiorkor occur in an older child age group, while marasmus occur in a less than 1 year of a age group. So this is a WHO criteria to define the malnutrition, because depending on the weight with respect to the height, and एक criteria होता है weight is to height, एक criteria होता है weight is to weight. तो weight is to height के criteria पे it is divided into various types, and if there is a edema present or in absent. So in kwashiorkor, because there is a deficiency of the protein, तो एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसके कारण ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या है, फ्लूइड जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाएंगे. तो इसलिए kwashiorkor के अंदर एडिमा मिलता है. एडिमा मींस द प्रेजेंस ऑफ द फ्लूइड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, because there is deficiency of the albumin which maintain the oncotic pressure, and when the oncotic pressure falls, then fluid from the cell will move out and accumulate in the extracellular space, that is edema. And kwashiorkor में क्योंकि प्रोटीन और एनर्जी दोनों की डेफिशिएंसी होती है, तो उसमें एडिमा नहीं मिलता है. Then marasmus means to the waist. It is a protein calorie malnutrition, and it is characterized by emaciation, means severe wasting of the muscle, and energy deficiency, and it occurs at the age of 6 months to the 1 year of the child. जब जो बेबी है वो स्टार्ट करने लग जाता है सॉलिड फूड. 6 मंथ तक बेबी जो है वो मदर मिल्क पर डिपेंडेंट रहता है. आफ्टर 6 मंथ हम उसको एडिशनल फूड देने लग जाते हैं. सो इन केस ऑफ इट अकर बिटवीन द 6 months to 1 year. Then the symptoms are, there is a growth retardation, there is a loss of subcutaneous fat, muscle wasting, it was the baby have a thin limbs, wrinkled skin, bony prominence, it leads to the chronic diarrhea, and the temperature is abnormal, and edema is absent. While in kwashiorkor, it is a severely protein deficiency when the child is not taking the protein as per the diet. So it occurs generally after the age of 12 months. So the skin is pigmented, there is diarrhea, there is muscle mass जो है वो decrease हो जाएगा, there is edema, fatigue, hairy changes and lethargy. And क्योंकि प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, so there is a damage to the immune system, and which leads to the increased chances of infection, and the baby is unable to gain the weight. So ये marasmus child है, and this is the kwashiorkor. You can see the edema in the child. So this is the difference between the marasmus and the kwashiorkor. Marasmus is a calorie deficiency, and while kwashiorkor is the protein deficiency. And it is important topic, it may be asked in the question. Then there is a marked growth retardation in the marasmus. The attitude, the child is irritable, while kwashiorkor में child जो है वो lethargic होगा. इसमें shrunken eyes होंगी and dehydrated होगा, इसमें edema मिलेगा. Appetite जो है वो marasmus में normal रहेगी, लेकिन kwashiorkor में anorexia होगा. means anorexia का मतलब होता है loss of appetite. Then it's the skin होगी वो dry होगी, इसमें cranky skin होगी, and hair changes marasmus में नहीं होंगे लेकिन kwashiorkor में होंगे, and इसमें डायरिया होगा, एंड kwashiorkor में वाटर डायरिया होगा. अब इसमें क्योंकि एल्ब्यूमिन marasmus में प्रोटीन एंड कैलोरी दोनों का डेफिशिएंसी है, तो इसमें एल्ब्यूमिन जो है वो 2 to 3 ग्राम पर डेसीलीटर रहेगा, लेकिन इसमें
2 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाएगा, एंड कोर्टिसोल इसमें इंक्रीज हो जाएगा एंड उसमें डिक्रीज हो जाएगा। नाउ व्हाट बायोकेमिकल चेंजेस, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो रही है, हाइपोएल्ब्यूमिनिया मिलेगा, आईजीजी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेशेंट में इन्फेक्शन है। आईजीजी इज अ टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी विच इंक्रीज इन द क्रोनिक इन्फेक्शन कंडीशन। अब फैटी लिवर होगा, क्यों? क्योंकि उसमें क्या होगा, लाइपोप्रोटीन का सिंथेसिस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा एंड डिक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ VLDL। देन पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा, हाइपोकैलेमिया मीन्स पोटेशियम का लेवल लो हो जाएगा एंड डिहाइड्रेशन, हाइपोमैग्नीशियमिया मीन्स मैग्नीशियम का लेवल भी कम होगा। देन हाउ टू ट्रीट विद द पेशेंट विद PEM, first upon hospital treatment, then dietary and then nutritional habituation. These are divided into 3 forms. Then hospital treatment में हम hypothermia means decreases temperature का decrease हो जाएगा तो hypothermia treat करेंगे, hypoglycemia any infection, dehydrate, electrolyte imbalance and vitamin and mineral की deficiency को normal करेंगे। Then dietary जो है जनरली हम प्रोटीन जो है 1 to 2 ग्राम पर बॉडी वेट देते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। देन वी विल गिव 3 to 4 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर बॉडी वेट, ठीक है। देन इसमें एनर्जी देन 150 to 200 किलो कैलोरीज पर बॉडी वेट में देंगे। जो चाइल्ड होते हैं, पीडियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं, उसमें हम कोई भी मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने बॉडी वेट मेंशन करा है कि 150 to 200 किलो कैलोरीज पर बॉडी वेट हम उसकी एनर्जी देंगे एंड प्रोटीन जो है वो 3 to 4 ग्राम पर बॉडी वेट देंगे एंड वी विल मॉनिटर द एडिमा बाय सीइंग द लेवल ऑफ एल्ब्यूमिन। देन न्यूट्रिशनल मदर को सेंसिटाइज करेंगे कि हाउ टू गिव द प्रॉपर डाइट टू द बेबी। देन हाउ टू प्रिवेंट द PM, वी प्रमोट द ब्रेस्ट फीडिंग, वी डेवलप अ लॉक ऑफ वीनिंग। वीनिंग मीन्स वीनिंग वो प्रोसेस होता है ब्रेस्ट मिल्क के बाद जब बच्चा जो है वो नॉर्मल सॉलिड फूड पे शिफ्ट होता है, उसे बोलते हैं वीनिंग। देन न्यूट्रिशनल एजुकेशन देंगे, देन इम्यूनाइजेशन एंड वी डायग्नोज अर्ली एंड ट्रीट द पेशेंट अर्ली ताकि उसमें सीवियर PM में नहीं जाए पेशेंट। देन यदि सीवियर माल न्यूट्रिशन होगा तो उनमें फिजिकल एंड फंक्शनल डेफिशिएंसीज हो जाएंगी, मेंटल जो है वो प्रॉपर एक्ट नहीं करेगा। देन अपन ने अंडर न्यूट्रिशन पे है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ओवर न्यूट्रिशन विच इज ओबेसिटी एंड ओबेसिटी मीन्स excessive fat deposition in the adipose tissue. There is an imbalance between the intake and the energy consumption. So how to measure the obesity? It's according to the BMI means body mass index, which is calculated by the body weight divided by height in the meter का square. And BMI जो more than 27.8 kg per meter square males में होती है, then it is known as obese, and in females में 23.7 kg per meter. Then दो तरीके की obesity होती है, एक exogenous, एक endogenous. Exogenous means when you eat more and do less exercise, and endogenous which is any metabolic changes like यदि आपका endocrine proper work नहीं कर रहा, endocrine system, any defect in the metabolism or any hypothalamic lesion. Then two types of obesity, visceral and subcutaneous. Visceral means when the organ is involved, and subcutaneous when it is related to the subcutaneous tissue. Then again central and peripheral. Central दो टाइप की होती है, एंड्रॉइड एंड गोनॉइड. Then major cause is the deficiency in the food habit and lack of exercise. जो आपका अपर बॉडी फैट टिश्यू होता है वो बेसिकली हाइपरट्रोफी के कारण होता है. हाइपरट्रोफी मीन्स इंक्रीज इन द साइज ऑफ एग्जिस्टिंग सेल एंड हाइपरप्लेजिया मतलब नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज होना. You will read in the pathology hypertrophy and hyperplasia. Hypertrophy means cell का size increase होना and hyperplasia means number of cells increase होना. And the other factor is also genetic factor. Then obesity leads to various disease like metabolic disease,
It releases to the hyperinsulinemia in diabetes mellitus, hyperlipidemia. There is increased chances of atherosclerosis, increased chances of blood pressure, cardiovascular disease and immature death. Then what are diseases? क्योंकि आपकी peripheral tissue है उसमें adipose tissue जो है उसमें इंसुलिन रिसेप्टर्स का डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण जो है डायबिटीज होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम किसे कहते हैं? यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, मींस इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है लेकिन वो सेल्स पर एक्ट नहीं कर पाई, दैट इज द इंसुलिन रेजिस्टेंस. देन हाइपरग्लाइसीमिया मींस इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज एंड ओबेसिटी. सो इट कंबाइन कॉल्ड द metabolic syndrome. And obesity also leads to the cardiovascular disease by increasing chances of atherosclerosis, hypertension, vascular disease and cardiovascular mortality. Then this is a definition of metabolic syndrome: when the glucose tolerance means fasting glucose is more than 100, insulin resistance, and there is central obesity, there is dyslipidemia means triglyceride level is high and HDL level is low. And hypertension हम जब बोलते हैं जब सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर दोनों इंक्रीज हो. सिस्टोलिक 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो एंड डायस्टोलिक 85 मिलीग्राम पर Hg से ज्यादा हो. Then these are the some hormones or the some biochemical agent, they regulate the appetite, and the regulatory center of appetite is present in hypothalamus. So the polypeptide which increase the appetite are neuropeptide, ghrelin, polypeptide, insulin and cortisol. And the peptide decreasing factors are leptin, MCH means myelocyte stimulating hormone, and serotonin. These are the factors which decrease the appetite. Then how to treat the obesity? It is treated by taking low calorie and low fat diet and decrease the calorie intake and fat intake. Eat small diet in a small interval of the time and exercise. Then there is a type of diet which is known as ketogenic diet, in which we take low carbohydrate and more ketogenic products for the weight loss. इसमें क्या होता है कि लिवर जो है हमारा बेसिकली बेस्ड ऑन द ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक मेटाबॉलिज्म. जब कीटोन बॉडी ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो इट मींस इट रिक्वायर्स द एनर्जी टू कंज्यूम द कीटोन बॉडी. सो आपका क्या होगा? फैट का बीटा ऑक्सीडेशन होगा, एंड क्योंकि आप ग्लूकोज कम ले रहे हैं देन आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस एक्टिवेट हो जाएगा. तो जो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड है वो सबस्ट्रेट प्रोवाइड करेंगे टू फॉर्म द ग्लूकोज. सो आपका मेटाबॉलिज्म ग्लूकोजेनिक एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके कारण क्या है आपका वेट रिड्यूस होगा. सो दैट इज द होल कंसेप्ट बिटवीन द लो कार्बोहाइड्रेट कीटोजेनिक डाइट. देन आपका इंसुलिन जो है वो सिक्रीशन वो भी इंक्रीज हो जाएगा. देन हाउ टू प्रिस्क्राइब अ डाइट? सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. देन क्वांटिटी ऑफ कितनी क्वांटिटी में आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट लेने हैं. Then what food should be consumed in that diet? Then diet को palatable means आपको ध्यान में रखना है कि पेशेंट जो है वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, उसके प्रेफरेंसेस क्या है, एंड देन फिर उसको 3 to 4 टाइम्स ऑफ मील उसको डिवाइड करना है. सो फर्स्ट हाउ टू कैलकुलेट अ डाइट. इसमें डाइट में बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स आते हैं. वन इज द कैलोरिक वैल्यू. कैलोरिक वैल्यू सब्सटेंस वो होती है कि उस सब्सटेंस को यदि हम डाइजेस्ट करें तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है. तो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की कैलोरी वैल्यू जो होती है वो होती है 4, एंड फैट की जो कैलोरी वैल्यू होती है वो होती है 9. देन उसके बाद हम बीएमआर निकालते हैं. बीएमआर इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेसल मेटाबॉलिक रेट. इन जनरल हम जो बेसल मेटाबॉलिक रेट लेते हैं वो लेते हैं 24. उसके बाद एसडीए मीन्स स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन, मीन्स इसका मतलब होता है थर्मोजेनिक इफेक्ट. यानी कोई भी प्रोडक्ट यदि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट ब्रेक डाउन होगा तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी उसे बोलते हैं एसडीए, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन, मीन्स थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ अ फूड. ठीक है. तो सबसे ज्यादा आपका जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो करता है प्रोटीन, उसके बाद फैट एंड देन लिपिड. तो जनरली हम मिक्स डाइट का एसडीए 10 लेते हैं. ठीक है. सो
अब हम कैलकुलेट करेंगे डाइट। तो यदि 60 kg का एडल्ट मैन है तो 60 इंटू 30, यदि और एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अपन परसेंटेज ऐड करेंगे। यदि सेडेंट्री एक्टिविटी है तो 30% ऐड करेंगे, यदि मॉडरेट वर्क है तो 40%, एंड यदि सीवियरली वर्क पेशेंट है उसमें 50%। तो अब पेशेंट जो है वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल का है तो 60 यानी जितना बॉडी वेट है उतना, यानी 60 इंटू 30, देन एसडीए अपन 10% ऐड करेंगे तो 180। और बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का अलग अलग रेशियो होता है। कार्बोहाइड्रेट शुड बी 60%, प्रोटीन शुड बी 20% एंड फैट शुड बी 20%। ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट किस पे बेस्ड है? बीएमआर, एसडीए एंड हाउ द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। सो यदि आपका 55 एज मेल है तो बीएमआर 55 kg उसका वेट है। बीएमआर इन जनरल अपन 24 लेते हैं। देन फिर उसमें अब ऐड करेंगे एसडीए 10%, एंड उसकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग मॉडरेटरी वर्क है तो 40% ऐड करेंगे। सो दिस इज हाउ द एनर्जी इज कैलकुलेटेड फॉर द पर्सन, बीएमआर, एक्टिविटी एंड एसडीए। देन उसके बेसिस पर कंपोनेंट के टोटल एनर्जी इतनी होनी चाहिए। प्रोटीन हम पर केजी बॉडी वेट, मतलब 1 ग्राम प्रोटीन विद द बॉडी वेट। ठीक है, तो उसका 55 केजी मैन है तो उसमें 55 ग्राम हम प्रोटीन देंगे। देन हमें एडिशनल कैल्शियम एंड आयरन टू मेंटेन द मेटाबॉलिज्म, हम उसमें 1000 मिलीग्राम कैल्शियम देंगे एंड 20 मिलीग्राम आयरन होना चाहिए। देन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट कितने? प्रोटीन हमने निकाल लिया 55 ग्राम, देन फैट, देन कार्बोहाइड्रेट, एंड देन दिस इज द कैलोरी। सो ये हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट कितना पेशेंट इनटेक करेगा। देन थर्ड स्टेप है कि कंपोजिशन ऑफ द फैट, यानी सीरियल एंड पल्सेस का, सीरियल होने चाहिए आपके 5% एंड 1% आपका पल्सेस होना चाहिए। तो इस कॉम्बिनेशन में हम, क्योंकि पल्सेस के अंदर मिथ्योनिन नहीं होता एंड सीरियल्स के अंदर लाइसिन नहीं होता, दैट्स व्हाई वी कंबाइन सीरियल प्लस पल्सेस ताकि हमको प्रॉपर अमीनो एसिड पेशेंट में मिले। देन इस तरीके से प्रोटीन मेजर करके हम उसको डाइट देंगे जिसमें हम फाइब्रस डाइट भी देंगे। देन फिर हम उसको फाइनली डाइट प्रिस्क्राइब करेंगे कि कितने ग्राम उसको सीरियल लेना है, कितने ग्राम उसको पल्सेस लेना है, कितने ग्राम उसको फैट लेना है, कितने ग्राम या कितने ml उसको मिल्क लेना है, कितने ग्रीस वेजिटेबल्स लेनी है। Then when you prescribe a diet, you should make sure it is a balanced diet, simple and local होनी चाहिए। Means यदि आपको उसको पहले पूछना पड़ेगा कि what do you eat in diet, ठीक है। Then प्रोटीन अमाउंट जो है वो एडिक्वेट होना चाहिए ताकि उससे सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिले। Then calorie intake should be proper, calcium and iron amount should be adequate and it should not be different from what he eats, and आपको एक रफ आइडिया उसको देना है। देन हाउ टू प्लान अ डाइट इन अ डायबिटिक पेशेंट। व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज क्या होता है? व्हाट इज डायबिटीज? Diabetes in a condition in which there is increase in the blood glucose level either ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो रही, और आइदर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द बीटा सेल्स ऑफ आइलेरिन जो कि प्रोड्यूस करते हैं आपका इंसुलिन। सो हमको डायबिटिक पेशेंट में मेनली क्या करना है कि कैलोरी इंटेक कम करना है ताकि ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहे, एंड उसे मल्टीपल स्मॉल डाइट लेंगे ताकि उसका इंसुलिन लेवल जो है वो प्रॉपर रहे। सो फॉर एन एवरेज इंडियन डायबिटिक डाइट हम क्या लेंगे? नॉर्मल उसकी कैलोरी इंटेक को कम करेंगे। नॉर्मल 2000 दे रहे थे तो इसको 1800 किलो कैलोरीज देंगे। देन 60% हम
ये देखेंगे कि 60% डाइट कार्बोहाइड्रेट से है, 20% अकॉर्डिंग टू अ वेट, प्रोटीन हम 1 to 1.2 ग्राम पर बॉडी वेट देते हैं, देन रिमेनिंग आप देंगे उसको फैट से, देन इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल मल्टीपल डाइट। देन इस तरीके से कि ब्रेकफास्ट में उसका टोटल डाइट का 15% हो, देन जो है मिड मॉर्निंग स्नैक्स 5%, देन लंच में 30%, देन इवनिंग टी 10%, देन डिनर जो है वो 35% एंड बेड टाइम स्नैक्स हम 5% देंगे। हम बेड टाइम स्नैक्स क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यदि प्रोलॉन्ग हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होगी तो पेशेंट में क्या होगा, रिवर्सली हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। यदि पेशेंट फास्टिंग रहेगा तो क्या होगा, इंसुलिन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और पेशेंट में जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया मिलेगा। दैट्स व्हाई वी प्रोवाइड बेड टाइम स्नैक्स टू अ डायबिटिक पेशेंट, ठीक है, ताकि उसे अर्ली मॉर्निंग हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। देन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो कि क्या करती है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कम करती है फ्रॉम द इंटेस्टाइन, एंड देन हम उसको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड प्रोवाइड करेंगे। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो फूड होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पे कम ग्लूकोज सिंथेसाइज करते हैं, एंड हम पेशेंट को होल ग्रेन्स, ओल मीट, रागी, राइस एंड ब्रेड प्रिस्क्राइब करेंगे, and refined sugar should be reduced. And foods which are avoided are high glycemic index, fried items, pastry, candies and sweet beverages. And sweet and sucralose are avoided and alcohols are also avoided. And jaggeries is a alternative to the sucrose. Then glycemic index क्या होता है, हम एक रेफरेंस लेते हैं कि यदि हम 50 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज देंगे तो वो कितना ग्लूकोज, एक 50 ग्राम ऑफ कोई भी प्रोडक्ट देंगे तो वो कितना ग्लूकोज सिंथेसाइज करेगा। तो उसके बेसिस पर हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स सेट करते हैं। इंक्रीजमेंट ऑफ द ग्लूकोज अंडर अ 50 ग्राम्स ऑफ द टेस्ट मील एंड द ग्लूकोज इंक्रीज विद अ रेफरेंस मॉलिक्यूल, उसके बेसिस पर हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका रेफरेंस टेस्ट मील के अकॉर्डिंग कितना ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हुआ एंड रेफरेंस मील। तो जनरली जो 50 ग्लाइसेमिक इंडेक्स से कम होते हैं वो आपके लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होते हैं, 50 ग्राम से ग्लूकोज कम रिलीज करते हैं, और जो ज्यादा होते हैं वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये हर फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, मतलब 1 ग्राम फूड कितना ग्लूकोज रिलीज कर रहा है। तो लो ग्लाइसेमिक यदि 50 से कम है तो इट मींस इट्स अ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, एंड हाई ग्लाइसेमिक 50 से ज्यादा जिसकी वैल्यू है ग्लाइसेमिक इंडेक्स की, दीज आर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। देन हाउ टू प्रिस्क्राइब अ डाइट इन अ हार्ट डिजीज पेशेंट। फर्स्ट, यदि पेशेंट हार्ट फेलियर का है तो उसके अंदर हम फ्लूइड मेंटेन करेंगे, उसको ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्लूइड नहीं देंगे, क्योंकि यदि ज्यादा फ्लूइड देंगे इट विल प्रेशर ऑन द हार्ट। Then we will maintain the blood BMI and the waist circumference. We will avoid high rich cholesterol food. हम पेशेंट को वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड पल्सेस रेकमेंड करेंगे क्योंकि अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, एंड जो वेजिटेबल स्टेरॉल होता है वो कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन जो है वो इनहिबिट करता है। We will avoid saturated fatty acids, इसके अपार्ट में हम अनसैचुरेटेड एंड पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स देंगे, क्योंकि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो आपका HDL का लेवल बढ़ाते हैं, विच इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपका वेजिटेबल ऑयल एंड फिश ऑयल्स में प्रेजेंट होता है। देन वी विल गिव द ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि लिपोप्रोटीन का लेवल कम करते हैं। लिपोप्रोटीन्स आर VLDL and LDL and HDL, and it decrease the level of coronary heart disease. Then जो trans fatty acids होते हैं, these are atherogenic, and we will give high fibrous diet to the patient, ताकि high fibrous diet जो है वो कोलेस्ट्रॉल का reabsorption जो होता है from the intestine वो decrease करता है, and the diet should contain whole wheat grains and cereals, pulses and green leafy vegetables with the fruit, because ये आपको फाइबर प्रोवाइड करती है।